Hi, I am Vinay Pandey, Master Teacher Vedantu, and we shall solve the JEE Advanced 2019 Paper 2 Chemistry, question number 3. And let us see the question number 3. This says, choose the correct options that give or gives an aromatic compound as the major product. Option A is CH3CHBr CH2Br on treatment with alcoholic KOH followed by NNH2 followed by red hot iron tube at 873 Kelvin. Option B says uh, cyclopentadiene on reaction with NaOMe. Option C says benzene on treatment with Cl2 in excess in presence of UV light at 500 degrees centigrade. And option D is cyclobutynyl bromide on reaction with NaOET. Okay, so we have to check in which case, in which reaction basically out of A, B, C, D, the product is, major product is aromatic compound. Okay, so let us check here. In case of first reaction, if we go for reaction number A, it is CH3 CHBr CH2Br. It is a vicinal dihalide, right? It is a vicinal dihalide. Now this vicinal dihalide on reaction with Na alcoholic KOH followed by NaNH2, it is a didehydrohalogenation, यानी कि 2HBr will be eliminated and you get one propine molecule, right? अब ये जो प्रोपाइन मॉलिक्यूल है ये पॉलीमराइज होता है अगर आप इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करें, ठीक है। अगर आप इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करें तो ये जो है 3 moles of starting compound will be polymerized this way, you see. ये ट्राइमराइज हो जाता है एक्चुअली और ये बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव बनता है and you see that we are going to get this compound. इसको मेसिटिलीन बोलते हैं और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है. So this compound is aromatic. That means our option A is correct. Option A is correct. In this option, the major product we get is an aromatic compound, right? Option B में देखें. Option B में हमने जो starting compound लिया है that is cyclopentadiene. cyclopentadiene के पास एक एसिडिक H होता है और अगर आपने इसे किसी बेस से ट्रीट किया, दिस सोडियम इथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल टेक अवे दिस H+ और अब ये बनेगा एक एरोमेटिक सॉल्ट. cyclopentadienyl anion Na+ is the cation, right? दिस इज एन एरोमेटिक सॉल्ट. तो एरोमेटिक सॉल्ट से हमें क्या मिल जाता है? ये एक एरोमेटिक प्रोडक्ट मिल जाता है. That means even option B is also correct, in which actually we are getting an aromatic salt, right? ये एक aromatic compound है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं. एक नेगेटिव चार्ज है, पूरे सिस्टम पर डिलोकलाइज्ड है, ये एरोमेटिक है और Na+ is the counter cation, so it is an aromatic salt, right? ये aromatic compound था इसे. So A and B are the answers. If we go for the C option, अगर हम C option के लिए जाएं, तो बेंजीन की रिएक्शन बेंजीन वैसे एडिशन रिएक्शन नहीं करता. It resists addition reaction because benzene itself is very stable. Despite of having high degree of unsaturation, benzene doesn't show addition reaction. It shows
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक एनी सैचुरेटेड कंपाउंड बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर पर एक्सेस में 500 केल्विन टेम्परेचर पर यूवी लाइट की प्रेजेंस में इस तरह की सिचुएशन बनाएं तो बेंजीन मुश्किल से ही सही लेकिन एक एडिशन रिएक्शन शो करता है। every carbon of benzene is already having one hydrogen, one Cl will get added to every carbon, and this way what we get is benzene hexachloride, right? Benzene hexachloride, BHC शॉर्ट में बोलते हैं। इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज ए मिसनॉमर। इसका फॉर्मूला है, दिस कंपाउंड हैज फॉर्मूला C6H6Cl6, इसीलिए इसका एक और नाम है 666। और वैसे इसका गामा आइसोमर, इसके बहुत सारे आइसोमर बनेंगे, इसका गामा आइसोमर गैमेक्सेन के नाम से मार्केट में बिकता है। इट्स अ कमर्शियल नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड इट इज़ नॉट एरोमेटिक। दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, सो सी इज़ नॉट आवर आंसर। सी हमारा आंसर नहीं है। और ऑप्शन डी में इन्होंने कहा है कि साइक्लोब्यूटेनाइल ब्रोमाइड ले लें और इसकी रिएक्शन अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस से करवाऊं और वो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOET। NaOET आप जानते हैं सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड इज़ बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर E2 रिएक्शन। लेकिन अगर हम E2 रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्योंकि अगर ये रिएक्शन होती है और इसमें से HBr निकल के जाए एज E2, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोब्यूटाडाइईन, ये साइक्लोब्यूटाडाइईन एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल एंड दे आर नॉट फॉर्म्ड जनरली, ठीक है ना। जनरली दे आर नॉट फॉर्म्ड एंड इफ दे आर फॉर्म्ड दे विल undergo in some changes so that they can exist like a non-aromatic at least. But क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन में एरोमेटिक प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसका आंसर है नो। दैट मीन्स C and D ऑप्शंस आर नॉट आर आंसर्स। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A and B। ठीक है भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। Please stay tuned for the next question.